Hello everyone, this is your Amit sir and I welcome you all in English class. Students, today we will do the poem number 2 of the book Beehive. This poem is Wind, as you can see on the screen. This poem is originally written by Subramania Bharati in Tamil language. But this poem is having lots of universal appeal, life lessons, and the life value. That's why A.K. Ramanujam has translated this poem in English. You're going to read the English version of the poem Wind. Students, the poet Subramania Bharati is a Tamil writer, poet, journalist, Indian independence activist, and lots of things. He had contributed lots of fruitful things in the field of Tamil literature as well as the freedom movement. ये एक रेगुलर एक्टिविस्ट थे फ्रीडम मूवमेंट के एंड ही हैड कंट्रीब्यूटेड लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम द साइड ऑफ साउथ इंडिया इन फ्रीडम मूवमेंट. He was born on 11 December 1882 and died on 12 September 1921 in Chennai. Students, this picture is the image of Subramania Bharati, and this man has done lots of work to enrich the Indian literature from the side of South India, and because of that we are going to read the poem Wind. This poem is all about the power of wind directly, but if we take this poem indirectly, then this poem is talking about the obstacles, problems, difficulties coming in human beings' life. The poet is also giving the ideas to face the hard wind, strong wind. That means if we take the lesson from this poem, then we can be ready to face the difficulties, obstacles, and all the problems which comes in our life. This is the introduction of the poem. Let's jump into the line by line explanation of the poem. Student, the poem starts with the request to wind god. The poet requests the wind god to come softly. Poet says, "Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again." Student, all these lines are the metaphoric lines. अगर मैं इसको metaphoric तौर पर लूँ तो these all lines are the metaphoric lines. The poet is requesting to wind. That means all human beings thinks that problem ना आए लाइफ में. यहाँ पर wind को एक पोएम एक प्रॉब्लम की तौर पर दिखाया गया है. How? The wind, the strong wind breaks the shutters of the window. विंडो को उखाड़ देता है. Scatter the papers, पेपर को बिखेर देता है. Throw down the books on the shelf. शेफ से जो है बुक को गिरा दिया जाता है और चारों तरफ जो है वो सब कुछ बिखेर देता है. Brought rain again, और फिर से बारिश आ जाती है. स्टूडेंट्स, इट्स अ मेटाफोरिक लाइन. विंडोज, पेपर्स, पेजेस ऑफ द बुक्स, इन सबको अगर हम अपने लाइफ में लें तो ये सब हमारे लाइफ की खुशियाँ एक तरह से हैं जो एक जगह पर अच्छी तरह से स्टोर की गई हैं. लेकिन कोई भी जब प्रॉब्लमेटिक तूफान आता है लाइफ में तो वो प्रॉब्लम और प्रॉब्लमेटिक तूफान सब तबाह कर देता है. एंड ब्राउट रेन अगेन. रेन यहाँ पर जो है वो हमारे लिए मेटाफोरिक आंसू है. तो हमारी आंसू निकलने लगते हैं टू सी द ऑल डिस्टर्बेंस एंड द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द लाइफ. In the next stanza, the poet says, "You're very clever at poking fun at weaklings. The wind god winnows and crushes them all." These two lines are very important. The poet is saying that wind god is very clever because वो हमेशा कमज़ोर को सताते हैं. पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कमज़ोर पर फन करते हैं, सताते हैं.
विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विंड गॉड जो है वो पहले उनको छांटते हैं। विनोज का मतलब होता है छांट कर अलग करना, मीन्स द ऑल वीक थिंग्स आर सेपरेटेड बाय विंड गॉड फर्स्ट एंड देन द विंड गॉड क्रशेस देम ऑल। पहले कमज़ोर लोगों को अलग करते हैं विंड गॉड, कमज़ोर चीज़ों को, और फिर उसको क्रश कर देते हैं, कुचल देते हैं। हाउ, कैसे कुचलते हैं? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग विंडो वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। हर चीज को कुचल करके विंड गॉड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। Okay? In the next stanza, the poet says, he won't do what you tell him. In the first stanza, poet was talking to wind to come softly. First stanza में हमने देखा कि poet is doing request to wind to come softly. But finally the poet had understood कि आप जो भी उसको बोलोगे वह नहीं करेगा. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. So the poet had brought an idea, एक आइडिया लेकर के आया है पोएट कि लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। अपने दिल को मजबूत बनाओ, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करो, अपने डोर्स को फर्मली ज्वाइन करो, मीन्स अपनी खुशियों को मजबूती से बना कर रखो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। अगर हम ऐसा करते हैं तो विंड विल बी द फ्रेंड्स विथ अस। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश। द पोइट इज गिविंग द एग्जाम्पल ऑल्सो कि अगर कमजोर आग होती है, कैंडल की आग होती है, तो विंड उसे बुझा देता है, लेकिन इफ द फायर इज स्ट्रॉन्ग एनफ देन द विंड कांट ब्लो आउट देम, इट मेक्स मोर फ्लोरिश देम। स्ट्रॉन्ग आग को विंड जो है वो और ज़्यादा मजबूत बना देता है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। वी मस्ट बी द फ्रेंड्स ऑफ विंड। एंड हाउ कैन बी द फ्रेंड्स ऑफ विंड? इफ वी विल स्ट्रॉन्ग एनफ टू फेस द ऑल ऑब्स्टिकल्स प्रेजेंटेड बाय विंड, देन we will be friends of wind. So this poem ends up here. Now moving to the summary part. Summary, we have seen that I have given you the line by line explanation and the whole summary, but it's very important to take a quick review that this poem is describes the action of the wind and how the wind destroys everything the poem is all about. The wind destroys the homes, the windows, the papers, and all the things of the home, and it crushes them all. It crushes them all. Then the poet advises us to be strong and to make everything strong to face the difficulties presented by wind. It is the way to face the things इन आवर लाइफ इफ वी विल स्ट्रांग इनफ। अगर हम लोग पहले से स्ट्रांग रहें, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड रहें, तो एग्ज़ाम हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है, एंड वी विल बी हैप्पीली create good marks, get good marks in the examination and the everything. So it's a very important to be ready to face the all things in our life. Now this is the time to discuss the literary device used in the poem. Literary figures क्या है? क्या होता है? पोएम के लाइंस को सुंदर बनाने के लिए जो खास वर्ड्स एंड फ्रेज को यूज किया जाता है उसको हम लिटरेरी फिगर्स कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लिटरेरी फिगर इज, बिफोर जंपिंग टू लिटरेरी फिगर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट द वर्स। द पोएम इज रिटन इन द फ्री वर्स। आप लाइंस को पढ़ोगे तो कहीं से भी कोई म्यूजिकल सेंस नजर नहीं आएगा और कोई खास एंडिंग पॉइंट नजर नहीं आएगा। So this poem is written in the free verse. There is no proper rhyming scheme in the poem. Anaphora. Anaphora is highlighted in the line number 2, 3, 4 and the line number 6, 7, 8. अब anaphora होता क्या है? अगर दो से ज़्यादा लाइन पोएम के एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको हम anaphora कहते हैं। तो लाइन नंबर 2, 3, 4 हैज स्टार्टेड विद don't and the line number 6, 7, 8 started with you. तो यहाँ एनाफोरा है। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पूरा विंड का पर्सोनिफिकेशन हुआ है। द पोएट इज टॉकिंग विद विंड।
तो हम लोग बात तो इंसानों से ही ना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हवा को इंसान के तौर पर समझा गया है और ट्रीट किया गया है उसको इंसान के तौर पर। रेपिटेशन, क्रम्बल वर्ड का रेपिटेशन आया है, क्रम्बलिंग एवरीथिंग, क्रम्बलिंग 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 करके। द क्रम्बलिंग वर्ड हैज रिपीटेड एंड प्रेजेंटेड अ मैजिकल व्यू इन द लाइन्स ऑफ द पोएम। नेक्स्ट, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स क्या होता है बच्चों? तो एलिट्रेशन का मतलब होता है कि अगर दो लगातार वर्ड एक ही जैसे साउंड से स्टार्ट होते हैं तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे विंड विनोज, विंड विनोज का एक फ्रेज आया था लाइन में, जहाँ पर ये कहा गया है कि द विंड गॉड विनोज, द विंड गॉड विनोज। तो विंड विनोज मीन्स हवा के देवता जो हैं वो छांट लेते हैं कमज़ोर और तेज को। लेकिन यहाँ देखो डब्ल्यू डब्ल्यू से दोनों एक ही जैसा साउंड है, वी, तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। इसी तरह से वॉन वॉन, तो ये भी जो है एलिट्रेशन है। सिंबलिज्म, द होल पोएम इज प्रेजेंटिंग अ सिंबलिक व्यू दैट द पोएम इज रेफरिंग द डिफरेंट थिंग्स। पोएम जो है वो हमारा एक्चुअली में विंड को नहीं रेफर कर रहा है, वो रेफर कर रहा है हमारे लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल्स एंड द प्रॉब्लम्स को। तो पूरा का पूरा पोएम जो है वो एक सिंबलिक पोएम है, मेटाफोरिक पोएम है। नाउ थीम्स, क्या थीम है इसका? द मोरल लेसन। थीम का मतलब लेसन या मेन आइडिया होता है। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग टू फेस द चैलेंजेस एंड द हार्डशिप्स इन आवर लाइफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द दामन ऑफ करेज। हमें करेज का साथ, करेज का दामन, साहस का दामन नहीं छोड़ना है। एंड टू फेस all the obstacles and the difficulties and the problems which come in our life with the without any fear, without any fear. Okay, determination is very important. So what is the conclusion of the poem? Poem का conclusion यही है कि डर के आगे जीत है। The poem gives us a very important message that we should not feel bad that we are facing many challenges and hardship in our life. अगर हम अपने लाइफ में हार्डशिप और चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं तो we should not feel bad. We should be ready to face those things. We should make us strong and everything will be according to us. So this is the conclusion of the poem. Hope you have understood everything. अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। This is enough from my side today. Have a nice day. Enjoy learning. Goodbye.